Hello students, again I'm here in front of you to discuss about the chapter known as the atoms and the molecules. As we already discussed about the many things atomicity about this topic we discussed in the last video only. So in the today classes we are going to discuss about the chemical formula, right? What do you mean by the chemical formula and what are the rules of writing the chemical formula? That is very important if you want to make the chemical reactions means. So if you don't know means the rules of writing the chemical formula, then it is a very bad for you, or it is a waste of studying the chemistry, right? Then what is the chemical formula? What is the chemical formula means? It is a symbolic representation of the composition of the compound. Means it is not used to write in the word forms, right? Means you need to represent in the symbolic form. If I want to write the hydrogen, if I am representing the hydrogen in the word forms, it is not suitable for writing in the reaction. I can't write whole the name of the hydrogen in a chemical reaction, or even it is not possible to balance also. That's the reason. So we are just made them with the symbolic representation. Those symbolic representations are again used in the chemical reactions to be studied very easily with the accurate manner. Right. What is the chemical formula? It is a symbolic representation of the composition of a compound. The compound means again they are made up of one or more than one element. With the different kinds of the elements they combine together, they form the compound. Right. Then what are the characteristics of this chemical formula? इनका character कैसे है? First, the valencies and charges ions must be balanced. जो भी वैलेंसी है और चार्ज है उन दोनों को कंपलसरी बैलेंस करना ही करना. अगर आप बैलेंस नहीं किए तो नहीं चलता कभी. दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ द केमिकल फॉर्मूला. मींस whatever the valencies they have, whatever the charges they have, they need to be balanced compulsory. What is the valency or valencies? The valencies nothing but they are the valency, right? Valency nothing but it is the outermost shell. Valence electron nothing but they are the unpaired electrons present in the outermost shell. So whatever the valencies they have, they need to be balanced again. So that is the first characteristics of the chemical formula. Then what is the second characteristic? The second characteristic is when a compound is formed of metal and non-metal. अगर एक कंपाउंड बन गया, वो कंपाउंड कैसे कहते? एक उसके अंदर मेटल है और एक दूसरा नॉन मेटल है, तब कैसे करना फॉर्मूले को फॉर्म, राइट? Then the metals come first. अगर एक कंपाउंड बन गया, उस कंपाउंड में मेटल प्लस नॉन मेटल है, राइट? मेटल नॉन मेटल बन के एक कंपाउंड तैयार कर रही है. तो ये कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखना? सिंपल. When a compound is formed of metal and non-metal, when a compound is formed of metal and non-metal, the symbol of metal comes first. जो भी मेटल का सिंबल है वो फर्स्ट आता कहते. Then the symbol of the non-metal comes later. Example, take here calcium oxide, where calcium is a metal and oxygen is a non-metal, right? Sodium chloride, where sodium is a metal and chloride is a non-metal. Copper oxide, copper is a metal and oxide is a non-metal. Means in all the cases we see that metals comes first, then after the non-metal. Metal comes first, then the non-metal. Metal comes first, then the non-metal. That is the second characteristics of the writing the chemical formula. Whenever the metal combined with the non-metal, metal should be written first, then after only the non-metal should be written. If the non-metal is written first, then it is totally wrong. It is highly impossible, because the rule is telling that the first should be written the metal only. If I am writing H2SO4, means here H2 is the metal, right? If I am writing magnesium oxide, magnesium is a metal, right? If I am writing copper sulfate, copper is a metal, sulfate is a non-metal. Here oxygen is non-metal, sulfate is non-metal here, right? Then if I am writing AgNO3, which means silver nitrate, the silver is a metal and nitrate is a non-metal. मतलब जो भी पहला है
पहले वाला मेटल रहता, बाद वाला नॉन मेटल रहता. दैट इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल फॉर्मूला. थर्ड इज व्हेन अ पॉलीएटॉमिक आयॉन्स आर यूज्ड. अगर ये एक पॉलीएटॉमिक आयन यूज किए, पॉली मीन्स देयर आर मेनी atomic ions there, the ions are enclosed in a bracket before writing the number to show the ratio. Simple देखो, these are the both are the polyatomics. Poly क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि एक से ज्यादा है ना, दो से ज्यादा है, दो तीन से ज्यादा है तो हम उसको पॉलीएटॉमिक बोलते हैं, राइट. अब सिंपल देखो, पहले एग्जांपल क्या लिए हम, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, एक पॉलीएटॉमिक है बिकॉज इट हैज द थ्री elements calcium, oxygen and hydrogen. So that there is a polyatomic. अब पॉलीएटॉमिक का चार्ज हमको लिखना है, रिप्रेजेंट करना है. तो अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, समझो CaOH2, इट विल बी रॉन्ग, राइट. बिकॉज हम अगर बिना ब्रैकेट के हम OH2 लिख रहे तो ये 2 सिर्फ किसका हो गया, हाइड्रोजन का हो गया. तो ये 2 अभी किधर एक 2 हम नहीं लिख सकते ऐसा. इट इज नॉट अ रूल. अगर चार्ज ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो 2 एंड हाइड्रोजन चार्ज ऑल्सो 2, देन आप इसको O2H2 नहीं लिख सकते, CaO2H2 नहीं लिख सकते, इट्स नॉट पॉसिबल. तो तब क्या करना, आप इसको OH ऑफ होल ब्रैकेट 2 लिखना. दैट इज ओनली द थर्ड रूल. व्हाइल राइटिंग द पॉलीएटॉमिक आयॉन्स यूज्ड इन द आयॉन्स आर एनक्लोज्ड इन द ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू शो द रेशियो. तो बिफोर राइटिंग द नंबर राइट करने से पहले क्या करो, उस आयन को ब्रैकेट में डालो बोल रहा हूं. वन मोर एग्जांपल, अमोनियम सल्फेट, राइट, NH4, द चार्ज ऑफ NH4 इज 2 एंड इट इज अ सल्फेट. अरे ऐसा कैसे हो गया? अब क्रॉस बैलेंस करके देखो, सल्फेट का क्या है, NH4 SO4. NH4 का वैलेंसी 1 है, सल्फेट का वैलेंसी 2 है. ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होता, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होता. अब इसको आप डायरेक्टली नीचे 2 नहीं लिख सकते, इसको पहला ब्रैकेट में डालना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुए सो इधर नीचे रखना, ये इधर मल्टीप्लाई हो गए 1 नथिंग बट 1 ओनली, सो इट बिकम्स NH4 ब्रैकेट ऑफ 2 देन SO4, राइट. So this is the rules of or the characteristics of the chemical formula. These are the 3 characteristics are there. So now we will discuss about the rules of writing the chemical formula. That is very important. So now the rules of writing the chemical formula बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, राइट. अगर ये आपको समझ में आ गया, समझो आपको पूरा केमिस्ट्री चीज जाता वेरी स्मूथ मैनर, राइट. फर्स्ट रूल इज we first write the symbol of element which form a compound. अब आपको एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा, उस कंपाउंड में हम सिंबल ऑफ एलिमेंट को लिखना है. पहला फर्स्ट केस में हमको सिंबल ऑफ एलिमेंट लिखना है, राइट. अब समझो कॉपर सल्फेट बोल रहा हूं मैं, राइट. इट इज रिप्रेजेंटेड इन अ वर्ड फॉर्म. अब इसको कॉपर का सिंबल क्या है, Cu है, सल्फेट का सिंबल SO4 है. तो पहले केस में क्या करना, आप जो भी है कंपाउंड उसका पहले सिंबल लिख दो. दैट इज द फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल, बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट वी शुड राइट देयर वैलेंसी. तो बिलो द सिंबल्स ओनली वी नीड टू राइट द वैलेंसी. अब इधर में O4 लिखा मैं, इसको बाजू में नहीं लिखा मैं इसको, और इसके ऊपर भी नहीं लिखा ऐसा. तो अगर आपको वैलेंसी लिखना है तो ब्रैकेट ऑफ लेके बिलो लिखना है. अगर पॉलीएटॉमिक रहा तो ब्रैकेट ऑफ लेना, नहीं तो डायरेक्टली क्या करना, आप बिलो द सिंबल लिखना. अब समझो Mg है, Cl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये जो 2 है ये वैलेंसी मैग्नीशियम का है. Cl का वैलेंसी तो 1 ही है बिकॉज Mg के पास तो कुछ भी नहीं है. मतलब जो भी वैलेंसी है उसको क्या लिखना, बिलो द कंपाउंड ऑफ द एलिमेंट लिखना, एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड लिख देना, खत्म. दैट इज द सेकंड रूल. द बिलो द सिंबल्स ऑफ ईच एलिमेंट वी शुड राइट देयर वैलेंसीज, राइट. द थर्ड रूल इज नो क्रॉस ओवर द वैलेंसीज. हम इसको डायरेक्टली ऐसा नहीं समझेंगे, इसको अच्छा सा एक एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे, राइट. फर्स्ट यू लिसन द रूल्स ऑफ राइटिंग द chemical formula. Now cross over the valencies
ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। तो जैसे आप वैलेंसी लिखते हैं उसको क्रॉस ओवर करना स्टार्ट कर दो। विद द फर्स्ट एटम वी राइट द वैलेंसी ऑफ द सेकंड एटम एंड विद द सेकंड एटम वी राइट द वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट एटम। मतलब जो फर्स्ट का वैलेंसी है उसको सेकंड को लिखना, सेकंड का वैलेंसी है तो फर्स्ट को लिखना। एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल के जरिए से हम इसको समझ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला, रूल्स ऑफ राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला। पहला क्या लिखो, एलिमेंट का सिंबल लिखो, बाद में एलिमेंट के सिंबल का वैलेंसी उसके नीचे लिखो, उसके नीचे लिखने के बाद दोनों को क्रॉस ओवर कर दो। क्रॉस ओवर करने के बाद पहले का वैलेंसी दूसरे को लिखो, दूसरे का वैलेंसी पहले को लिखो। Understand this one by the example. Right, take an example of hydrogen sulfide. I'll rub this one. Take the example of hydrogen sulfide. Right. Example, hydrogen sulfide. अब हाइड्रोजन ऐसा लिखो, पहले सिंबल लिखो, सल्फाइड यस लिखो ऐसा, हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों को जरा दूर दूर लिखो। राइट, नाउ व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन? वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। देन व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सल्फाइड? वैलेंसी ऑफ सल्फाइड इज 2। सर हम वैलेंसी कैसे फाइंड करना है? वो तो नहीं बोले आप। वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू कैन राइट। I will show you how to write the electron configuration. So now, see here, hydrogen valence is 1. तो हाइड्रोजन सल्फाइड लिखे हम। हाइड्रोजन सल्फाइड में H है और S है, दोनों का सिंबल लिखो। सिंबल लिखने के बाद हाइड्रोजन का सिंबल उसके नीचे लिखो, सल्फाइड के सिंबल उसके नीचे लिखो। अब दोनों को क्या करो, क्रॉस ओवर कर दो। फर्स्ट एलिमेंट का एटम का वैलेंसी दूसरे को क्रॉस ओवर करो और सेकेंड एलिमेंट का वैलेंसी और एटम का वैलेंसी फर्स्ट को क्रॉस ओवर कर दो। ये इसको क्रॉस कर दो, ये इसको क्रॉस कर दो। राइट, होने के बाद अब देखो 2 इधर क्रॉस हो गया, तो 2 कहाँ लिखना करते हम, कभी नीचे लिखना, ऊपर नहीं लिखना। राइट, अब ये बन गए H2, नीचे लिखो। H के पास S1 मल्टीप्लाई करो, 1 लिखे तो भी चलता, नहीं लिखे तो भी चलता, नहीं लिखो H2S। तो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला। तो इसी को हम केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं। अब इस केमिकल फॉर्मूला को क्या रीड करना हम, हाइड्रोजन सल्फाइड। कभी भी आपको डाउट आता सर आप MgCl2 कैसा, ये 2 कैसा आया, वो 2 आया इसके मेथड से ही आया सर। लेकिन आप NaCl लिखने के टाइम में ये तो 2 नहीं आ रहा ना, ये क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज दिस ऑल थिंग्स आर डिपेंड अपॉन देयर वैलेंसीज ऑफ अ कंपाउंड। ये सभी वैलेंसी के खेल है, किसी के अंदर कितना नंबर आता वो सब वैलेंसी के खेल है। सिंपल, कभी भी याद रखना, अगर आप एक कंपाउंड लिख रहे उस कंपाउंड में जो भी 2 किसी एलिमेंट का रहता है ना नीचे, वो वैलेंसी किसका रहता है, बाजू वाला का वैलेंसी रहता है। एक्चुअली ये 2 हाइड्रोजन का वैलेंसी नहीं है, ये किसका वैलेंसी है, सल्फाइड का वैलेंसी है। मतलब जो भी वो नंबर कैरी करता है वो बाजू वाले का रहता, ना कि उसका रहता। अब और एक एग्जांपल ले लो, टेक वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। इट्स वेरी इजी ना। टेक वन मोर एग्जांपल। कार्बन डाइऑक्साइड। एक वन मोर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या है मेरे पास, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो कार्बन का वैलेंसी क्या है सर? तो कार्बन का वैलेंसी तो 4 है। क्यों 4 है? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। 2,4 2,4 मीन्स 4 इज द वैलेंसी। आउटमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही चीज उसका वैलेंसी होता है। अब सर ऑक्सीजन का क्या एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो उसका 2 कैसे आ गया, 2,6। अगर ये मोर देन 5 है समझे, इसको -8 कर देना, तो आ गया कितना, 2 आ गया। तो वैलेंसी कितना होगा ऑक्सीजन का, 2 हो गया। अप टू 4 वैलेंसी इज सेम। अगर 4 के ऊपर आया समझो, उसको -8 करना। ये 4 तक ही है, इसको कुछ भी नहीं करना।
4 के ज्यादा रहे, समझो 4 के ऊपर आ रहे उसको -8 करते जाना, राइट। तो ये इसको क्रॉस ओवर कर दो, ये इसको क्रॉस ओवर कर दो, राइट। तो बनता क्या ये C2 हाँ O4। ऐसे लिख सकते कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे तो नहीं लिख सकते, तो इसको मारो ना, 2 1 जा 2 2 जा, जाता नहीं जाता, जाता सर, दोनों भी इवन नंबर है, 2 1 जा 2 2 जा, तो बचे कितना, इधर 1 इधर 2, तो 1 इधर मल्टीप्लाई होता, 2 इधर मल्टीप्लाई होता, 1 मीन्स C 1 जा C, O मीन्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ केमिकल फॉर्मूला, CO2 इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर दोनों साइड में नंबर कैंसिल हो सकते तो कर देना खत्म। अब दोनों साइड में समझे, एक एक बार क्या होता मालूम है, एक एक बार दोनों के बीच में नीचे 2 2 आता, नहीं तो 3 3 आता, तो दोनों भी कैंसिल हो जाते उधर, कुछ भी नहीं लिखना, दोनों का कैंसिल हो जाते, 1 1 ही आता उधर, सिंपल में। तो नाउ टेक वन मोर एग्जांपल, हर एक टाइप का एग्जांपल देखेंगे क्योंकि आपको कल कुछ भी डाउट नहीं रहना इसके ऊपर। टेक वन मोर एग्जांपल अबाउट hydrochloric acid. The third example, we are taking hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या क्या है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। तो सर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो वैलेंसी भी 1 हो गया। क्लोरीन के कितने हैं सर, क्लोरीन का तो एटॉमिक नंबर 17 है, तो वैलेंसी कितना हो गया सर, 2, 8, 7, 7 - 8 इज 1 इज इक्वल टू 1। मैं बोला ना, आउटरमोस्ट शेल में अगर मोर देन 4 है तो उसको -8 करना, -8 क्यों करना, बिकॉज इट इज ऑक्टेट, ऑक्टेट के कारण उसको -8 करना, ये ऑलरेडी स्टडी इन 8th स्टैंडर्ड, राइट। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वैलेंसी कितना हो गया, 1 है, तो क्लोरीन का वैलेंसी कितना है, वो भी 1 है, तो दोनों को क्रॉस ओवर करो तो क्या आता है, सेम आता सर, HCl, खत्म। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला HCl। टेक वन मोर एग्जांपल, सेम वैलेंसी रहा तो कैंसिल हो जाते, समझ लो, बी सेम वैलेंसी दोनों साइड रहे तो। टेक वन मोर एग्जांपल, कार्बन टेट्राक्लोराइड। राइट, कार्बन क्लोराइड मीन्स क्लोरीन, इसमें 2 एलिमेंट है, कार्बन एक है, क्लोरीन एक है। तो सिंपल, कार्बन का वैलेंसी अभी तो हम देखे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2, 4, 4 इज द वैलेंसी कार्बन। तो क्लोरीन का कितने हैं सर, अभी किए हम क्लोरीन का भी, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 2, 8, 7, 7 - 8 इज 1, राइट। तो कार्बन का वैलेंसी हो गया 4, क्लोरीन का वैलेंसी हो गया 1, दोनों को क्रॉस ओवर कर दो, कितना आया, 1 × C, C, 4 × Cl, Cl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। CCl4 is the chemical formula of carbon tetrachloride, right? Take one more example. आज जब पूरा जितने भी एग्जाम्पल है बुक में सभी एग्जाम्पल देख लो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी आपको डाउट नहीं रहना कि सर इसमें 2 कैसे आ गए नीचे, इसमें 1 कैसे नहीं आया, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें 3 कैसे आया, कुछ भी नहीं रहना डाउट। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या क्या है एलिमेंट, एक मैग्नीशियम एक है और क्लोरीन एक है। तो सर मैग्नीशियम और क्लोरीन है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है सर, सिंपल है वो तो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 2 है। तो सर क्लोरीन का क्या है सर, क्लोरीन का तो 1 है, ऑलरेडी स्टडीड, राइट। सर मैग्नीशियम का 2 कैसा, बिकॉज द मैग्नीशियम इज, you see the periodic table, I think it is a 12, 2, 8, 2, 2 is the valency, right। Then क्लोरीन का तो 17 है, ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट दैट वन, राइट। सो क्रॉस ओवर कर दोनों को, राइट। तो आया मैग्नीशियम इंटू 1 becomes Mg, Cl इंटू 2 becomes Cl2, मीन्स MgCl2। सर अगर MgCl2 आया, लेकिन
इस केस में सिर्फ NaCl क्यों आ रहा है? इधर भी Cl ही है ना, इधर भी Cl, इधर Cl2 कैसे आया? यू स्टडी दैट आल्सो। तो Cl2 कैसे इधर आया और उधर Cl ही क्यों आया? अब NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड है, राइट। अब सोडियम क्लोराइड को, सोडियम का वैलेंसी कितना है? सोडियम का वैलेंसी 1 है। 1 कैसे है सर? बिकॉज सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11 है। 11 को लिखो 2,8,1, आउटरमोस्ट शेल में 1 है तो 1 है। तो क्लोरीन का वैलेंसी कितना है? क्लोरीन तो बहुत बार कर चुके हम, 1 है। तो दोनों को भी क्रॉस ओवर कर दो, 1 1 1, दोनों सेम रहता, खत्म, कुछ भी नहीं है, होता है Na×Cl। इधर NaCl2 क्यों आया? बिकॉज मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और 2 इसको क्रॉस ओवर हो रहा। कभी भी अगर हम नंबर लिख रहे इसको तो वैलेंसी किसका रहता है? बाजू वाले का रहता है। इधर लिखे तो इसका रहता है, इधर लिखे तो इसका रहता है कंपाउंड में, राइट। सो अंडरस्टूड हाउ द NaCl इज फॉर्म्ड एंड MgCl2 इज फॉर्म्ड देयर। तो अभी इसके बाद आपको डाउट नहीं आना सर इधर MgCl2 कैसे आया और इधर NaCl ही क्यों आया? बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी। Take one more example, little bit difficult. Aluminium oxide, Al। so aluminium का एक्चुअली वैलेंसी है 3 और ऑक्सीजन को तो आपको ऑलरेडी पता है। ये वैलेंसी कैसे फाइंड करना सर? इसको तो आप एटॉमिक नंबर से और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आराम से फाइंड कर सकते हैं। आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दूं कैसे लिखना बोल के। तो दोनों को भी क्रॉस ओवर कर दो, क्या बन जाता है? Al2O3, Al2O3 इज द अल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट। अगर आपको वैलेंसी आए तो खत्म, क्रॉस ओवर कर देना, जो आते हो लिखना, डिफरेंट आए तो लिखना, सेम आ रहे तो कैंसिल कर देना। इधर भी 2 इधर भी 2 आ रहे, समझो दोनों भी कैंसिल हो जाते क्योंकि 200 जाता उधर। अब 4, अब इधर 4 आए 2 आए, समझो 2 से भी जाता, 4 6 2 6 आए, समझो 2 3 से भी जाता। मतलब जाते जो जाते हो लिखना। ये तो ऑड नंबर से, एक ऑड है P1 है, वो तो कैंसिल नहीं होते, तो सीधा लिखना Al2O3, राइट। नाउ take one more example to understand when both valency will be same, what is the formula? Calcium oxide, तो कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम को वैलेंसी 2, ऑक्सीजन को वैलेंसी 2, दोनों भी 2 है सर, क्रॉस ओवर कर दो तो आता है Ca2O2। सर हम ऐसे लिखना है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो दोनों को कैंसिल कर दो, 2 1 जा खत्म, दोनों के पास एक का या CaO। इजी मेथड, डू नॉट रेफर दिस वन, यू कैन राइट दिस आल्सो, बट कैंसिल करके लिखे तो सबका आसान होता, सिंपल, राइट। तो कैल्शियम ऑक्साइड अल्टीमेट CaO। So these all are the rules of writing chemical formula. I hope you understood. So you maybe know about the periodic table. आपको periodic table तो पता होगा। periodic table में 4 ब्लॉक है, राइट। ऐसा है periodic table। इस periodic table में 4 ब्लॉक है। ये पहला 2 लाइन है ना, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, और ये दूसरे लाइन को एस ब्लॉक, इसको पी ब्लॉक बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम डी ब्लॉक जो मिडिल में है, और इसको बोलते हैं हम एफ ब्लॉक, राइट। मतलब पीरियड टेबल में 4 ब्लॉक्स है, मतलब एक कमरा रूम है समझो, रूम में 4, एक घर है समझो, घर में 4 कमरे हैं, राइट। और घर का नाम क्या है? पीरियड टेबल है। कमरे का नाम क्या है? एसपीडीएफ। तो इस एसपीडीएफ 4 ब्लॉक में अगेन सब ब्लॉक भी है कहते, ब्लॉक के अंदर भी ब्लॉक है कहते, राइट। अब देखो एस ब्लॉक में 1 सब ब्लॉक है, उसका नाम है 1s।
पी ब्लॉक में 2 सब ब्लॉक है, उसका नाम है 2s 2p। डी में 3 है, 3s 3p 3d। एफ में 4 है, 4s 4p 4d 4f। So on the base of this one, we can write the electronic configuration. Simple. I will show you how to write the electronic configuration. तो फर्स्ट ब्लॉक में कितने हैं? एक ही है सर, 1s है। तो सेकंड ब्लॉक में कितने हैं? 2 है सर। एक है नाम है 2s, दूसरे का नाम है 2p। नजदीक नजदीक लिखो जरा। तो तीसरे में कितने हैं? 3 है, 3s 3p 3d। तो 4 में फोर्थ में कितने हैं? 4s 4p 4d 4f। आप ऐसे नीचे लिख सकते हैं आप 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d। यू कैन राइट अगेन मोर में, अगर आपको चाहिए तो अभी लिख सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं। कभी भी याद रखना है यस का पावर 2 रहता, कभी भी हर एक एक्स को यस को 2 लिखो ऊपर, और हर एक पी का 6 रहता है, पी का 6 रहता, सभी पी को 6 लिखो। डी का 10 रहता, सभी डी को 10 लिखो। और एफ का 14 रहता तो 14 रखो, लिखो इसका राइट। एस का 2, पी का 6, डी का 10 और एफ का 14 राइट। अब इसको इस फॉर्म में लिखो। जो भी लाइन में आते हो लाइन में लिखो, ऐसा लाइन ड्रॉ करो। इसको हम अफबू प्रिंसिपल बोलते हैं, अफबू प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इधर से स्टार्ट करो, ऐसा पीछे से स्टार्ट करो। जो आर्मर दिखा रहे ना, पीछे से आना, मतलब जैसे पीछे से तो वैसा लिखते जाओ। पीछे से फर्स्ट में 1s2 कॉमा, और इससे और इधर से ऐसे नहीं लेना, फिर पीछे से आना, इधर से ऐसा आके ऐसा ऐसा पीछे से आना। अब इधर भी आओ, क्या आ गया 2s2, फिर पीछे से आओ, इधर से, इधर छोड़ो, फिर पीछे से आओ 2p6। पहले क्या तो लिखो 2p6, उसके बाद क्या आ रहा है 3s2, फिर पीछे से आओ 3p6, उसके बाद क्या आ रहा 4s2 राइट। उधर जगह नहीं है ना, मैं नीचे लिखते देखो 4s2 होने के बाद फिर क्या है, पीछे आओ 3d10, 3d10 के बाद 4p6, 4p6 के बाद 5s2, हाँ फिर पीछे से आओ 4d10, 5p6, 6s2, so on. You can write again 4f14, 5d10, 66. So you can write again so on. So this is known as electronic configuration. तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज कैसे करना, हम आप बोल रहे हैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको हम यूज कैसे करना। सिंपल एक एग्जांपल ले लो, सोडियम ले लो। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, तो वो 11 होने तक ही लिखना। सिंपल, ऊपर के नंबर को ऐड करना, पावर को 2 + 2 4, 4 + 6 10, इधर तक आ गया। 3s2 है इधर, लेकिन 11 होने के लिए कितना चाहिए, मुझे सिर्फ एक चाहिए। 2 की जगह पे कितना लिखो 1 लिखो, बाकी उनको डिलीट कर दो। सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विच वन, सोडियम। समझ में आया। तो ऑन दिस बेसिस जो आउटरमोस्ट शेल में रहता 1, वही क्या रहता है, उसका वैलेंसी रहता हो, that won't be the valency of the element, right? So this is about the Abbu principle of writing the electronic configuration. I hope you understood the rules of writing the chemical formula. They are very important, and the rules of writing the chemical formula you can write only if you know the atomic number and electronic configuration. अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करने को आता, तब भी आप क्या कर सकते,
क्रॉस ओवर करके उसका सिंबल निकाल सकते हैं, और एल्स इट इज हाईली इम्पॉसिबल. So this much is enough for today. I hope you understood the class very well. So again, I will be right back with the new topic, with the new things in the next video. So we'll again meet in the next video. So stay home, stay focused. Bye bye.